Am I audible clearly? Yes, ma'am. So today's introduction about speaker and anchoring will be done by Pooja madam. Pooja madam, over to you. Good afternoon, everyone. I, Professor Pooja Shinde, welcome you all on this energetic afternoon to a life skills development program about yoga, physical fitness, and a healthy, active lifestyle. The World Health Organization had released a statement in 1948 that said, health is a state of complete mental, social, and physical well being, and not merely the absence of disease. And so, even while most of us think we are healthy, we are in fact not. So the aim of today's event is to create awareness for yoga and fitness. Yoga education can enhance all the activities of the students, be it academic or sports or social. Yoga techniques provide improved attention in studies, better stamina and coordination for sports, and a heightened awareness and a better attitude for social activities. So today we have with us Mr. Vishal Patil sir to help us understand more about this topic. Mr. Vishal Patil, who is a wellness coach, he's also certified by Herbalife Nutrition Company. He has over 5 years of experience as a yoga instructor as well as a practitioner. Vishal sir, I would request you to please begin your session. Over to you, sir. Yes. Thank you, Pooja ma'am, for introducing me. Hello, good afternoon, everyone. My name is Vishal, as Pooja ma'am introduced me very well, so I don't think I have to explain more on that. So, without wasting any time, I've started with my uh, first, I can say, in the SOE college, first workshop, first seminar, you can say. So, whenever we whenever we start something, so we start with a prayer, which is our Guru Prarthana, Guru Vardhana Prarthana. So we will like to ask you all to on your video, please, if possible to you, so I can see the faces. So we will start with the Guru Vandana and then we start our session. Okay. So it will be in both language, Hindi or English. It will be mixed languages there because all of students are like Marathi, Hindi. Okay. So we will start with the Guru Vandana Prarthana. Okay. So kindly all join your hands, and if you don't know, so just listen and repeat after me. Okay. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वेऽपि सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखमाप्नुया ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावलीनमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति. Just rub your hands. ओके. तो ये प्रार्थना इसलिए थी क्योंकि हम जो भी दिन भर काम करते हैं. Is that audible to you? Is that audible to everyone? Yes, sir. तो ये प्रार्थना इसलिए थी कि हम जो भी दिन भर काम करते हैं उसमें थकान रहती है, जो हमारे दिमाग में जो भी कुछ बातें रहती है वो एक वॉश आउट होने के लिए प्रार्थना करते हैं. तो इससे हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो आई जस्ट स्टार्ट विथ लाइक अवर सेशन. सो आई जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन.
Can you see the scene? Yes, sir. It's visible. Is it visible to you? Yes, sir. Okay. So first of all, what is yoga? Right? Hello? What is yoga? Can anyone explain, or have you done any yoga classes or something like? योगा क्या होता है, कोई बता सकता है? हेलो. Okay. Yoga, it's the overall development of a body with a mind. It increases oxygen level in body, balance vata, kapha and pitta, helps to improve concentration. Okay, so yoga means सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सर पे खड़ा रहना है, योगा करना है. ठीक है. योगा मीन्स क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अन बॉडी, क्योंकि जो हमारे जब ऑर्गन्स है, वो हमारे ऑर्गन्स हमें क्या करते हैं, जो दिखाते हैं वही हम करते हैं. इस ऑर्गन्स पे कंट्रोल पाना यानी योगा. ओके. हम क्या करते हैं, जो मतलब हम बेसिकली हम योगा का मतलब क्या जानते हैं कि मतलब जो पैर इस पे डालता है, सर पे डालता है, सर पे खड़ा रहता है. ओके. और फ्लेक्सिबल रहता है, वो योगा है. वो योगा नहीं है, वो योगा आसन है. ठीक है. योगा क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, जो ध्यान करते हैं. ओके. जो अपने कंट्रोल्स पे इमोशंस पाते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल पाते हैं. ठीक है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो योगा में इंक्लूड होती है. तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है. वो आज नहीं कि सपोज आज आपने चालू कर दिया और कल से आपने सब पे कंट्रोल पा दिया, ऐसा नहीं होता है. तो कैसा होता है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है. वो मैं आपको आगे योगासन बताऊंगा कैसे करते हैं. तो इससे पहले कि हम आगे जाए, तो मैं आपको कुछ योगासन बताना चाहूँगा जो Sir, यस. your PPT is not visible. You can only see the blank screen. Yes, sir. It's visible now. So your mic is muted. Okay, I just set up my camera, so just Yes. wait for 2 minutes. Yes. So your mic is muted. Yes, sir. Okay, I'm visible to everyone. Yes, sir. ओके. सो अगर हम योगा के बात करते हैं, योगा का बात करते हैं, तो सबसे पहले जो होता है उसमें सिटिंग, ये इंडियन सिटिंग होता है. आजकल हम नीचे बैठना ही भूल गए. मतलब हम कम से कम 2 से 3 घंटा ऐसे बैठ सकते हैं अगर प्रॉपर योगा के आसन करते हैं तो. लेकिन आज 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 मुझे नहीं लगता कि हम
2 से 3 घंटे छोड़ो तो 1 घंटा भी हम ऐसे नीचे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो है सिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, स्टेडी। ओके, और उसके बाद जो आप कर सकते हैं वो सारी योगा की क्रिया कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपाल भाती कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैठना ज़रूरी है। सबसे पहले इस पोजीशन में बैठना आपको कंफर्टेबली आना चाहिए। ओके, तो ऐसे बैठने से आपके जो भी कुछ पैर के प्रॉब्लम्स है, पीठ के प्रॉब्लम्स है, ये आधे से ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि हम ज़मीन पे बैठते हैं। क्योंकि आजकल हम 8 से 10 घंटा काम करते हैं, 8 से 10 घंटा चेयर पे बैठते हैं, घर पे जाने के बाद भी सोफ़ा पे बैठते हैं, खाने के लिए भी नीचे नहीं बैठते हैं, खाने के लिए भी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। तो ऐसा बैठना हम कभी दिन में, मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 मिनट में हमारा ऐसा बैठना होता है। तो आज से आप एक ट्राई कर सकते हैं कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ऐसे नीचे ज़मीन पे बैठ के अपना वक्त बिताए। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो ज़मीन पे बैठिए, खाने के लिए ज़मीन पे बैठिए, कुछ पढ़ रहे हैं तो ज़मीन पे बैठिए। ऐसे करके आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि हम ज़मीन पे बैठे, क्योंकि योगा का सबसे बेसिक यही है कि आपको बैठ के आसन करने आने चाहिए, बैठ के आपको सब ध्यान करना आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप सबने पहले कभी किया रहेगा, देखा रहेगा। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ये हमारा नॉर्मल आसन होता है, ये आधा पद्मासन होता है, और अगर ये पैर भी हम इधर डालते हैं तो ये पूरा पद्मासन होता है। तो आपको अगर ऐसा बैठना नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं। ओके, या आधा पद्मासन डाल के भी बैठ सकते हैं। आधा पद्मासन सबको जमता है, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले आता है कि हम डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे। ठीक है, डीप ब्रीथ करने के लिए आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, हाथ, जब भी हम सांसों की कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारा जो दाया हाथ है, सॉरी बायां हाथ है, राइट हैंड, वो हमें ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड हमें नीचे रखना है, क्योंकि हमारी पहली नासिका जो है वो राइट चलती है और बाद में लेफ्ट चलती है। तो जब भी हम सांसों की क्रिया करते हैं कोई भी, तो ये हम राइट हैंड ऊपर रखते हैं। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ओके, और गर्दन सीधी, आंखें बंद, और सांस को धीरे से अंदर लेना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। उसे बोलते हैं पूरक रेचक। पूरक यानी अंदर लेना, रेचक यानी बाहर छोड़ना। तो आप मुझे पहले ऑब्जर्व कीजिए, बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डीप ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, आपको सांस को धीरे 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 अंदर लेना है और धीरे 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 बाहर छोड़ना है। ऐसा आप 10 बार करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ओके, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। इस डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि अभी मैं समय के वजह से मैं ज़्यादा आपको एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आपको सिर्फ इसका बेसिक बता रहा हूँ कि जो आप ध्यान करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो आपको सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, आजू बाजू की कुछ भी साउंड आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, तब आपका मेडिटेशन या कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है वो रहता है कपाल भारती। कपाल भारती में क्या होता है, एक 2 प्रकार की कपाल भारती है, आध्यात्मिक कपाल भारती और शारीरिक कपाल भारती। आध्यात्मिक जो हम अक्सर टीवी पे देखते हैं, जैसे रामदेव बाबा के हम वीडियो देखते हैं, उस आध्यात्मिक कपाल भारती में क्या होता है, वो पेट हिलता है। वो हमें पेट नहीं हिलाना है, क्योंकि हम आध्यात्मिक कपाल भारती नहीं कर रहे, हम शारीरिक कपाल भारती कर रहे हैं, हमारे खुद के लिए कर रहे हैं।
ठीक है। आध्यात्मिक कैसा होता है, जो दूसरों के लिए किया जाता है। ओके, तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो दूसरों के बेनिफिट के लिए खुद एक्सरसाइज किए, खुद को योगा कर रहे, ठीक है। इसलिए हमें शारीरिक कपालभाति करनी है, उसमें पेट नहीं हिलेगा, सिर्फ छाती में आपको वाइब्रेशन दिखाई देंगे और नाक के वाइब्रेशंस, 2 ही वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, आप घर पे बाद में ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही पूरक रेचक होता है, जो हम अंदर सांस लेते हैं उसे पूरक बोलते हैं, जो बाहर छोड़ते हैं उसे रेचक करते हैं। और यहाँ पे हम 54 टाइम ई स्ट्रोक करेंगे, यहाँ पे 54 टाइम ये स्ट्रोक करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 54 ग्रंथियाँ होती है हमारे हार्ट में, यहाँ पे 54 ग्रंथियाँ होती है, यहाँ पे 54 ग्रंथियाँ होती है। तो हम 2 बार करेंगे, 54 का स्ट्रोक्स करते हैं। ओके, तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। पहले सांस को बाहर छोड़ना है, जो भी हमारे अंदर सांस है वो पहले बाहर छोड़ना है, उसके बाद सांस को अंदर लेना है और सांस वो पकड़ के आपको कपालभाति करना है, ठीक है। मैं आपको डेमो बता देता हूँ। ऐसे 54 बार करना है, ओके। और इस साइड भी 54 बार करना है, ओके। तो आप काउंट कर सकते हैं 54 बार, मेरा स्ट्रोक कितनी बार होता है आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बार हुआ या ज़्यादा हुआ, ऐसे आपको 3 बार करना है। इसे बोलते हैं कपालभाति या शारीरिक कपालभाति। इससे भी हमारे जो ब्लॉकेजेस रहते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, जैसे कि हमारे और कुछ व्याधियाँ रहेंगी वो भी इससे दूर हो जाती है, ठीक है। तो यह हमारी सांसों की क्रिया है। सांसों की क्रिया में क्या रहता है, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। मीन्स जो भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो अभी आप देख रहे हैं कि इस कोरोना के काल में जो भी कुछ कह रहा था, मतलब वो इम्यूनिटी बढ़ाने की, इसमें योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये सब बता रहे थे, क्योंकि ये पहले से चलते आ रहा है, हज़ारों सालों से चलते आ रहा है, जो उसको बताने के लिए ये कोरोना का आने का समय लगा, ठीक है। तो अभी आप कौन सी भी अभी तो वैक्सीनेशन आ गया है, लेकिन पहले कोई 1 साल तक कोई वैक्सीनेशन नहीं था। ये सब हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड था। इस क्रिया से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपके जो भी कुछ सपोज आपको किसी का इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो वो भी आपका चला जाएगा इस कपालभाति से, ठीक है। तो ऐसे 3 स्ट्रोक होते हैं, तो मैं आपके समय के चलते मैं आपको 3 स्ट्रोक करके नहीं बताऊंगा। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अब सिर्फ सेशन के लिए आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं बाद में भी आपको कांटेक्ट करके तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं आपको यहाँ पे पूरा जो 1-1.5 घंटे का योगा रहता है वो तो करके नहीं बता सकता। तो इसके बाद जो रहता है वो रहता है वज्रासन, ठीक है। वज्रासन कैसे आपको सब पता रहेगा, आपने देखा रहेगा, आपने किया भी रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वज्रासन कैसा रहता है। ये हुआ वज्रासन, ठीक है। इसमें आपको दोनों नी, अपने जो घुटने हैं वो बेंड करने हैं, पीठ सीधी रखनी है, ठीक है। पीठ 90, ऐसा नहीं रहना है, ऐसा भी नहीं रहना है, पीछे भी नहीं रहना है, ठीक है। और पैर अगर आप देखोगे, ठीक है, पैर को आपके एड़ी के ऊपर आपको बैठना है, ऐसा पैर बाहर नहीं निकालना है, पैर के बीच में नहीं बैठना है, ठीक है। पैर के एड़ी पे आपको बैठना है, 2 अंगूठे आपको सटे हुए रहने चाहिए, 2 अंगूठे सटे रहने चाहिए,
पीठ सीधी रहनी चाहिए, ओके, आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए और आपके हाथ गोद में रहने चाहिए, ओके। इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। खाने के बाद अगर आप ऐसा बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अब जब खाने के बाद हम ऐसा बैठते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो पेट में इकट्ठा हो जाता है और आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ओके। तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, खाने के बाद आप तुरंत ऐसा बैठ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसा खाना हो गया आप तुरंत ऐसा बैठ जाओ, 10-15 मिनट जितना आपको मतलब एक्सटेंड होता है उतना करो, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और आपके जो किसी किसी को आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे पैर में किसी किसी को वेरिकोल वेल्स बोलते हैं उसको, खून जैसा, खून की गुठलियाँ रहती है, ऐसा पैर में रहता है, आपने किसी को देखा रहेगा। वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम जैसे ऐसे बैठते हैं ये ब्लड यहाँ पे चौक हो जाता है और जैसे खड़े रहते हैं और जो ब्लड है वो तेजी से सर्कुलेट हो जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम है मैंने खुद देखा है, बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वेरिकोल वेल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे, ऐसे बैठने में को आपको कुछ करना नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, जगह कितनी कम लगती है, ओके, और उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टीज भी नहीं है। और यहाँ पे आपको किसी को कुछ मतलब किसी को डिफ़िकल्टीज नहीं है कि आप ऐसा बैठे, ठीक है। घर में आप किधर भी बैठ सकते हैं, किसी कोने में बैठ सकते हैं, जगह नहीं होती है तो ऐसे इतने से जगह पे भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और इस पोजीशन में बैठ के भी आप बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डीप ब्रीदिंग बताया, वो डीप ब्रीदिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज हो गया। अगर आपको बाहर जाना नहीं होता है, अगर सपोज आपको बाहर जाना नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप ऐसे बैठे बैठे बहुत सारी क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि हाथ की ये क्रिया कर सकते हैं, मुट्ठी बंद करनी है, मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर लेना है, ये हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके जो हमारे जॉइंट्स में लिक्विड रहता है, ये क्रिया करने से हमारे जो लिक्विड से वो किसी किसी को शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, इस फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर हो जाती है इस ऐसा करने से, ठीक है। तो ऐसा बैठे बैठे बहुत सारी क्रिया कर सकते हैं। चाहिए तो मैं आपको ऐसा भी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। कितने लोगों का ऐसा होता है आपका, कितने लोग ऐसा पकड़ सकते हैं, ट्राई कीजिए, अपनी जगह पे बैठ के कर सकते हैं आप, कितने लोग पकड़ सकते हैं ऐसा। कैन यू ट्राई? I tried, sir, but इसने ट्राई किया, ये आप कभी कर सकते हैं anyone क्या? else who tried? So 9 students ने hand raise किया है. 9 Yes. students. Okay. ओके, जिनका भी होता है वो अच्छा है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। और अगर आप जिनका नहीं हो रहा है वो एक अपने नहाते समय ट्राई कर सकते हैं, साबुन जब भी आप लगाते हो तभी आप इजीली हाथ ये आपका ये हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ओके। जैसे आप आते वक्त साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं, तभी आपका इजीली हाथ स्लिप हो जाएगा और आपको उसको मतलब आपका क्रिया हो जाएगा। और जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपका बाद में जैसा मेरा हो रहा है वैसा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, वज्रासन हो गया, पद्मासन हो गया, और डीप ब्रीथ बताया मैंने आपको, और कपाल भारती बताया, ठीक है। और एक आसन है, और मैं एक ही आसन बताऊंगा, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। और एक ही आसन रहता है जिसे हम और वज्रासन में और हम और एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। उसे हम प्राणायाम भी बोल सकते हैं। प्राणायाम क्या रहता है, जो भी हम सांसों की क्रिया करते हैं, प्राणवायु को पकड़ के जो क्रिया करते हैं उसे प्राणायाम बोलते हैं। लोगों को लगता है प्राणायाम यानी कि कुछ बड़ा कुछ है जो मतलब जो कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी कुछ प्राणवायु को, सांस को रोक के जो क्रिया करते हैं उसे प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम प्राणायाम भी कर सकते हैं, या कुछ आपको जो लगता है वो कुछ एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा रहता है,
कि आपको प्राणवायु को पकड़ के करना है, लेकिन किसी अच्छे गाइड से आप सलाह लेके ही करें, क्योंकि यहाँ पे कैसा रहता है, उसमें कुछ आपको डिफिकल्टीज आई या कुछ आपको अलग से बाधा हो गई तो कैसा रहता है कि मैंने आपको सिखाया था, ऑनलाइन सिखाया था, लेकिन मैं आप मुझे देख रहे थे लेकिन मैं आपको मतलब सामने से मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये करते समय किसी भी अच्छे गाइड का मतलब सलाह लीजिए और उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको हाथ को ऐसा जोड़ना होता है। ठीक है, हाथ को ऐसा जोड़ना है। ओके, और जैसे हमने कपालभाति में किया, डीप ब्रीदिंग में किया, आपको सांस को बाहर छोड़ना है और सांस भरते भरते हाथ को ऊपर लेना है और सांस छोड़ते छोड़ते आपको आगे झुकना है। मैं आपको डेमो बताता हूँ, आप देखिए। यहाँ पे सांस को रोक के रखना है आपको, सांस को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आके सांस को पूरा भरना है, हाथ पूरा स्ट्रेच करना है और यहाँ पे आपको सांस को भर के रखना है। ठीक है, और सांस छोड़ते छोड़ते आपको नीचे जाना है। और नीचे आपको 2-3 नॉर्मल सांस लेनी है। और फिर सांस भरते भरते आपको ऊपर आना है। और फिर सांस छोड़ते छोड़ते आपको हाथ को नीचे करना है। ठीक है, ये एकदम आसान तरीका है। आपके पीठ के सब डिफिकल्टीज निकल जाएंगे, पैर के नी के डिफिकल्टीज निकल जाएंगे, शोल्डर, हाथ, ये ओवरऑल आपका बॉडी जो है वो समकाया बोलते हैं उसको। योगा में क्या रहता है, बॉडी समकाया हो जाती है, ना कोई जाड़ा रहेगा ना पतला रहेगा। ठीक है, आपका बॉडी समकाया हो जाएगा, मतलब आप एक जैसे दिखोगे। आपके ने किसी किसी को देखा है जो जिम वगैरह जाते हैं, उनके पैर छोटे रहते हैं, चेस्ट बड़ा रहता है, आर्म्स बड़ा रहता है, ये छोटा विथ मतलब कमर बोलता है, कमर छोटा रहता है। ऐसा बॉडी यहाँ पे योगा पे नहीं होता। योगा पे समकाया जो शरीर होता है वो होता है। अगर आप किसी बिल्डर को या बॉडी बिल्डर रहता है उसको ये क्रिया करने को बताओगे तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मसल्स इतने फूले हुए हैं कि वो खुद का वेट नहीं गेन कर सकता है, खुद का वेट अब कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ मैं वज्रासन में बैठा हूँ, कम से कम 10 मिनट मैंने ऐसे ही बैठा हूँ। मैं ऐसा 1 घंटा तक बैठ सकता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे बैठ सकते हैं, घर पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा 1 घंटा मैं ऐसा घर पे भी जैसे बैठता हूँ, टीवी देखते देखते मैं ऐसा बैठता हूँ, किसी से बात करता हूँ मैं ऐसा ही बैठता हूँ। और मेरी बेटी भी है, वो मुझे फॉलो करती है, क्योंकि आप जो करते हो आपके बच्चे छोटे आपको फॉलो करते हैं। अगर वो आप अभी से ऐसा फॉलो करने लगे तो आप जो भी अच्छा करोगे वो आपको फॉलो करेंगे, बुरा करोगे तो भी वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद रहता है, इसमें आप 3 प्रकार कर सकते हैं। एक हाथ के ऐसे हो सकता है, ओके, दूसरा हाथ बांध के, जो भी मैंने ऐसा किया वो हाथ बांध के कर सकते हैं। सेम क्रिया, सांस लेना है, रोकना है, हाथ ऊपर करना है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, सांस भरते भरते और फिर नीचे छोड़ना है। ठीक है, वैसा ही पीठ पे हाथ बांध के कर सकते हैं ऐसा। ये हो गया। तो ये था जब हम वज्रासन में बैठ के जो क्रिया कर सकते हैं। ये सारी क्रिया आप घर पे कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में आप पूरा क्रिया कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हेल्दी एक्टिव लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि योगा करने जाऊंगा तो मैं 2 घंटे का सेशन भी कम पड़ जाएगा। ओके, तो ये जो बेसिक है योगा में कैसा रहता है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सर पे खड़े रहो या ये टांग जो है वो ऊपर ऐसे डाल दो। ओके, ये जरूर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल बैठना आना चाहिए। 1 से 2 घंटा आप सिंपल बैठ सकते हैं, नीचे बैठना आना चाहिए। पद्मासन में बैठो, सीधे बैठो, वज्रासन में बैठो,
लेकिन ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दिन में बैठो, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करो, कपालभाति करो, ओके। जो मैंने वज्रासन में क्रिया बताई वो करो, ये हाथ के प्रकार करो, ठीक है। ये बहुत सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करो, ये होता है, ये होता है, ठीक है। दोनों हाथ साथ में ऐसा होता है, ठीक है। ये सब आप क्रिया कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो इसके बाद हम जो डेली एक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हैं, मतलब हम जो दिन में 24 घंटा रहते हैं, वो हम क्या करते हैं उसमें हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ योगा में डिफिकल्टीज है या कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो। Hello, student. If you have any queries regarding yoga asanas, please ask. Hello. Anyone have query regarding yoga or yoga asanas, pranayam? They can ask right now. Anyone have query? Any questions? सो क्या मैं आगे जा सकता हूँ फिर? Yes, sir. Yes. Sir, there's a question from a student. Yes. Sir, he's asking whether yoga can help for strong memory. स्ट्रॉन्ग मेमोरी कैसा रहता है? अभी सपोज इट डिपेंड्स ऑफ कौन से एज में एज से आप योगा कर रहे हो, ठीक है। अगर सपोज आपका एज अभी 30 है या 35 है, ठीक है, तो मेमोरी कैसा रहता है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहता है। मेमोरी मतलब क्या होता है, जब जो भी चीज़ आपने सपोज बचपन में कोई फिल्म देखी है, कौन सा मतलब सीरियल देख रही है, कौन सा इंसिडेंस था, वो आपके मेमोरी में अभी भी है, क्योंकि वो अपने पूरे 100% से आपने वो कॉन्सेंट्रेशन से आपने देखा हुआ या मतलब आपको याद है। ऐसा कोई भी चीज़ हम 100% से जब ध्यान दे के करते हैं तो वो हमारे ऑटोमेटिकली मेमोरी में रहता ही है, ठीक है। उसको मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई योगा हेल्प कैसे करता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, ठीक है। अब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, ओके, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका स्टडी अच्छा हो जाएगा। जो आप अच्छा होगा वो आपको एग्जाम में भी पार्ट मतलब मेमोराइज हो जाएगा। तो ऐसा मेमोरी पे ऐसा काम होता है, ऐसा नहीं होता कि मेमोरी इम्प्रूव होता है। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ करता है, वही आपको याद आता है और उसको हम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये डीप ब्रीदिंग आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी, यू कैन से कि वो आपको याद रहेगा। Thank you, Any sir. more question? Any more No, question? sir. I think you can move forward. Okay. तो अभी हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा मतलब जानकारी लेंगे, ठीक है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल कैसा रहता है कि सपोज माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू एवरीवन, ओके। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल कैसा रहता है, हम हमारे दिन में 24 घंटे रहते हैं, ठीक है। हमारे पास सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। किसी के पास कोई 22 घंटा होता है, स्लाइड
स्क्रीन दिसते स्क्रीन आवाज येतो हेल्दी एक्टिव लाइफ कैसा होता है लीडिंग टू हेल्दी लाइफस्टाइल आप बोल सकते हैं हमारे पास 24 घंटे रहते हैं सबके पास 24 घंटा है ठीक है ऐसा कोई नहीं कि जो 22 घंटा है मेरे पास 20 घंटा है ओके तो इस 24 घंटे को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको कहते हैं लीडिंग टू हेल्दी लाइफस्टाइल ठीक है तो इसमें लीडिंग टू हेल्दी लाइफस्टाइल इज गुड न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल A balanced diet can help you to reach a maintain healthy weight, reduce your risk or chronic disease and promote your overall health. Okay, तो इस 24 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली कर सकते हैं ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर पी सकते हैं गुड न्यूट्रिशन खा सकते हैं और रेस्ट एंड रिफ्रेश ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम हमारी जो भी कुछ हॉबीज़ रहेंगी ओके जो भी कुछ हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेंगी वो कर सकते हैं लेकिन बेसिक अब लीडिंग एक्टिव हेल्थ स्टाइल के लिए लाइफस्टाइल के लिए आपको ये करना जरूरी है ठीक है तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ पे है वेलनेस की तरफ जाना है या इलनेस की तरफ जाना है ओके क्योंकि आप वेलनेस की तरफ जाओगे तो ही आप ये फॉलो कर सकते हो अगर आपको इलनेस के पास जाना है तो ये मतलब 24 आवर्स भी आपको कम पड़ेंगे अगर आपको इलनेस की तरफ ही जाना है तो क्योंकि यहाँ पे कैसा है आप कितना भी मतलब रीडिंग कर लो या कितना भी वर्कशॉप अटेंड कर लो जब तक आप ये फाइनलाइज नहीं करते कि आपको वेलनेस के पास जाना है या इलनेस के पास जाना है तो ये एरो आपको शो कर रहे हैं जो आपको कहाँ पे जाना है ये आपका डिसीजन रहता है और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आज का लाइफस्टाइल है ठीक है हमारा स्ट्रेस है फ्रस्ट्रेशन है ओके हमारे जो भी हम खा रहे हैं जो भी हम हमारे एयर अंदर जा रही है वाटर है फूड है सॉइल है प्रोडक्ट्स है जो भी है वो सब टॉक्सिन्स है ओके हम जहाँ पे भी जाते हैं टॉक्सिन्स ही खाते हैं ठीक है और मेडिकल फार्मेसी मतलब हम जो टैबलेट्स लेते हैं आजकल कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे टैबलेट या कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है फार्मेसी मतलब कोई टैबलेट नहीं मिलता है या किसी का भी मेडिसिन नहीं मिलता है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अभी हमारा टीवी जो है फ्लैट होता जा रहा है और हमारा पेट है जो वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा सबका यही हालत है कि अभी हम घंटों घंटों टीवी देखते रहते हैं तो हमारा टीवी जो स्मार्ट होता जा रहा है और हम वैसे के वैसे अभी चल रहे हैं और स्मार्टफोन्स गैजेट्स इसका आपका हमारा यूसेज कितना है आप चेक कर सकते हो दिन का हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है देख सकते हो कुछ खाने का टाइम नहीं है सोने का टाइम नहीं है ओके कुछ लाइक टारगेट नहीं है कि ये करना है वो करना है ठीक है ये स्टाइल है स्मार्ट वर्क बैठे बैठे काम करना चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स ओके प्रोसेस फूड ओके ड्रिंक्स स्मोक ये अभी जो हमारे मिल्क ऑयल शुगर चीज चिप्स जो भी कुछ मिल रहा है ये सब प्रोसेस फूड मिल रहा है क्योंकि हमारा कुछ हर्बल मिल ही नहीं आ रहा है ठीक है जो भी हम खा रहे हैं प्रोसेस फूड खा रहे हैं और आजकल आप देखोगे तो ये कोरोना तो अब भी आया 1 साल से आ गया है ठीक है तो अगर आप देखोगे तो ओबेसिटी में इंडिया अभी 2 नंबर पे है चाइना 1 नंबर पे है लेकिन इंडिया 2 नंबर पे है चाइना में हर पांचवें व्यक्ति के बाद 5वें व्यक्ति में 4 व्यक्ति ओबेसिटी से त्रस्त है मतलब जो ओबेसिटी उनको है क्योंकि इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे मैगजीन्स आ रहे हैं वो भी ओबेसिटी पे आ रहे हैं ठीक है कोरोना तो अभी आया है इससे पहले ओबेसिटी कब से चल रहा है आप यूएस में देखोगे तो हर 10 के बाद 8 लोगों को डायबिटीज़ है ओके इंडिया में भी वो ऐसा ही रेशो बढ़ रहा है तो ओबेसिटी कब से चल रहा है कोरोना तो अभी आया है तो हम उसको कोरोना से अभी लड़ना पड़ रहा है लेकिन ओबेसिटी से हम कब से लड़ रहे हैं हमारे आजू बाजू भी देख सकते हैं हमारे आजू बाजू में 2 लोग रहेंगे तो उसमें से एक तो ओबेसिटी से सफ़र कर रहता है ठीक है तो अभी ये ओबेसिटी बहुत सारा बढ़ गया है लोगों में और हम जो अभी फूड भी खा रहे हैं पहले कैसे था अगर आप गाजर खाते थे मूली खाते थे सॉरी तो आपको इतने सारे विटामिन मिलते थे मिनरल्स मिलते थे जो भी कुछ रहेगा वो आपको इतने सारे मिलते थे लेकिन आज क्या मिलता है आपको इतना ही मिलता है कितने कम हो गए आप देख सकते हैं नाउ और देन ओके ये जो आपको प्लांट्स में लुक द सेम बट दे नाउ हैव फार प्योर मिनरल्स ठीक है तो अभी आपको इतना प्योर खाना नहीं मिल रहा है ठीक है अगर आप देखोगे पहले के ज़माने में हार्ड वर्क करते थे लोग किसान खेती करता था ठीक है उसका खाना कैसा था ऐसा था नॉर्मल फूड था आप क्या कर रहे हैं अभी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं डेस्क जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका खाना बदला क्या
किसी का खाना बदला है क्या? ये कोई रहेगा तो मुझे बोल सकते हैं कि आपका काम वही कर रहे हैं लेकिन खाना चेंज हुआ है। काम तो स्मार्ट कर रहे हैं आप लेकिन खाना स्मार्ट नहीं खा रहे। राइट और रॉन्ग? हेलो, Right. एनीवन? Agree, तो sir. पहले कैसा था कि हेलो, पहले कैसा था, किसान खेती करता था, दिन भर मेहनत करता था और उसके बाद जाके उसको इतना खाना पड़ता था। लेकिन आज हम उतनी मेहनत करते हैं क्या? मेहनत छोड़ो, हम एक्सरसाइज भी करते हैं क्या? एक घंटा तो एक्सरसाइज करते हैं क्या? फिर अपना खाना नहीं बदला लेकिन हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो ये इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोई बता सकता है मैंने क्यों स्लाइड डाला है? एनीवन गेसेस? एनी गेसेस? कोई बता सकता है कि इस स्लाइड का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? हेल्दी फूड एंड जंक फूड। सॉरी, He said desi food and junk food. ओके, एनीवन एल्स? ओके, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हम एप्पल, ऐसा कोई है क्या जो पूरा एप्पल खाता है यहाँ पे? अगर आपको एप्पल दिया तो पूरा का पूरा एप्पल खाता है? यस सर। हम एप्पल क्या करते हैं, अगर आप एप्पल होता है तो काट के हम 4 लोगों को देते हैं, ठीक है? अगर एक एप्पल रहेगा तो उसके जितने भी पीसेस होंगे उसमें से एक हम खाएंगे, 4 लोगों को देंगे, ठीक है? घर में भी यही होता है, राइट? लेकिन समोसा आप किसी को देते हैं, एक समोसा आप 4 लोग खाते हैं? कभी खाया है किसी ने एक समोसा 4 लोगों में? नहीं सर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग। सॉरी, एक समोसा 2 हम, लोग में शेयर हो जाता है। यस, कैसा रहता है? अगर हम सर समोसा को कट नहीं कर समोसा सकते। रहता है वो एक एक आदमी 3 से 4 समोसा खाएगा, लेकिन एप्पल जो रहेगा वो एक आदमी 3 से 4 लोगों में बांटेगा, ठीक है? जो आपको खाना चाहिए वो आप बांटते हो, और जो नहीं खाना चाहिए वो आप दूसरों का भी लेके खाते हो, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। कैसा रहता है हमारा? अभी पानी का जो कंटेंट है, पानी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा 20 kgs ऑफ योर बॉडी वेट रिक्वायर्स 1 liter ऑफ वाटर, सो इफ यू आर 60 kgs योर बॉडी नीड्स एवरेज 3 liters ऑफ वाटर। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 3 लीटर, मतलब उनके 3 लीटर भी पानी पीते हैं? चलो वेट छोड़ दो, 3 लीटर भी पानी पीते हैं, ऐसा कोई है 3 लीटर पानी पीने वाले यहाँ पे? एनीवन? यस सर। यस सर, एक्ने की वजह से खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। किसकी वजह से? एक्ने, पिंपल्स। ओके, तो आपका कुछ तो मतलब कुछ तो रीज़न है इसलिए आप पी रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्यों पीना है? आपको डॉक्टर ने बताया रहेगा इसलिए आप पी रहे हैं, राइट? यहाँ पे कैसा रहता है, अगर आपका वेट 20 kg है तो पर 20 kg आपको 1 लीटर पानी पीना है। जैसे कि आप 60 kg है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। हम क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, एक ही बॉटल लेके जाते हैं। उस एक बॉटल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी बैठता है, और जिसका छोटा बॉटल रहेगा उसका 500 ml, ठीक है? वो एक बॉटल हम दिन भर पीते हैं या कब से ज़्यादा एक बार हम भरते लेंगे, फिर से भरते रहेंगे, ठीक है? तो आज से आप क्या कर सकते हो, एक 4 लीटर का जार ले लो या 4 लीटर के 2 बॉटल ले लो, कुछ भी ले लो जिसका मेजरमेंट 4 लीटर हो जाए, ठीक है? वो 4 लीटर का आप भर के रखो और आप खुद पियो, और आप देखो कि आप कितना पानी पी रहे हो दिन में, ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लीटर से ज़्यादा पियोगे ही नहीं। 3 लीटर तो पिए होगा ही नहीं आपका। आप कम से कम 1 ही लीटर पानी पी रहे हो आज की डेट में। आप ये ट्राई कर सकते हो, 4 लीटर का जार भरो, 4 लीटर का जो भी कुछ मेजरमेंट रहेगा वो भरो, और आप सिर्फ अकेले पियो, किसी का शेयर मत करो, ओके? तो आपका वाटर इंटेक देखो आप कितना कर रहे हो, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, आपको बचपन से पता है। जब से आपको मतलब पानी पता है, वैसे आपको ये भी पता है कि पानी क्यों पीना चाहिए, लेकिन हम पीते नहीं हैं, ओके? वो 4 लीटर तो होता ही नहीं है। जैसे आपका वेट मेजर करो, उस वेट के हिसाब से अगर आप 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पीना है, 60 किलो है तो 3 लीटर पीना है, 50 किलो है तो 2.5 लीटर पीना है, ठीक है? और ये है फ्यूचर डॉक्टर विल ट्रीट विथ न्यूट्रिशन।
ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये थॉमस एडिसन कह रहे हैं। द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव यू नो मेडिसिन बट विल इंटरेस्ट हिज पेशेंट इन हिज केयर ऑफ द ह्यूमन फ्रेम इन डाइट एंड द केस कॉज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब आगे आपको दवाएं मिलेगी ही नहीं, आपको न्यूट्रिशन ही मिलेगा। अच्छा, अभी अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अच्छा खाओ, ओके, एक्टिव रहो, बाहर का कुछ मत खाओ, यही बताते हैं ना। तो फ्यूचर में यही होने वाला है कि डॉक्टर आपको न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन नहीं लेके देंगे, प्रिस्क्रिप्शन आपको न्यूट्रिशन देगी। ठीक है, तो ये आगे होने वाला है, न्यूट्रिशन ही आपको खाना पड़ेगा। और क्या खाना है, मतलब कैसा खाना है। ठीक है, तो हमारा ये रेशियो है। हमें क्या लगता है कि सिर्फ खाने पे ही सब डिपेंड रहता है और एक्सरसाइज पे ही डिपेंड रहता है, लेकिन अभी का रेशियो ऐसा होता है कि 80% न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट रहता है। आप वर्कआउट करते हो वो ठीक है, लेकिन आप खाते क्या हो? आप वर्कआउट कितने करते हो? 1 घंटा, और खाते कितने टाइम हो? 16 घंटा, क्योंकि 8 घंटा छोड़ दो उसमें से, आप नींद सोते हो, 8 घंटा आप सोते हो। ओके, तो 24 आवर्स में आप 8 घंटा सोते हो। ठीक है, एक घंटा कौन एक्सरसाइज करता है? कितने % लोग एक्सरसाइज करते हैं? ओके, वो 1 घंटा एक्सरसाइज, और आपका बाकी के जो आवर्स है वो आप न्यूट्रिशन या क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना न्यूट्रिशन मतलब आपकी बॉडी में दे रहे हो। ओके, कितना अच्छे प्रोडक्ट्स, मतलब अच्छे फ्रूट्स या कुछ भी जो अच्छा रहेगा वो खा रहे हो, ये डिपेंड करता है इस पर कि आप दिन भर कैसे हेल्दी एक्टिव रहते हो। ठीक है, और उसके लिए आपको एक्टिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज एक्सरसाइज? एक्सरसाइज इज फिजिकल एक्टिविटी दैट इज प्लान, स्ट्रक्चर एंड रिपीटेटिव फॉर द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग द बॉडी, इंप्रूविंग हेल्थ एंड मेंटेनिंग फिटनेस। ओके, एक्सरसाइज मतलब इसमें से आप देख रहे हो कुछ भी आप कर सकते हो फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज मतलब आपको 5 किलोमीटर दौड़ना ही है। ठीक है, आपको आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, मतलब स्किपिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या जो भी कुछ आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 1 घंटा तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके ये बेनिफिट है एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के बेनिफिट है क्योंकि कैसा रहता है, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो अभी सुसाइड करने का रेशो कितना बढ़ गया है, छोटे छोटे रीजन से लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ बहुत वीक है। ओके, ये एक्सरसाइज क्या करता है? रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, इंक्रीज वेल बीइंग, इंक्रीज लेवल एनर्जी लेवल, बूस्ट ब्रेन पावर, रिड्यूस डिप्रेशन के, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, इंक्रीज मूड। अगर आप सपोज आपका मूड अच्छा नहीं है, ओके, आप तो किसी फ्रेंड के साथ या ऐसे आप कहाँ पे साइकिलिंग करते हो, वॉक करते हो, थोड़ा घूम के आते हो, तो आपका मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स है हेल्थ के, मतलब एक्सरसाइज करने के। ओके, तो ये सब इंक्लूड होता है इसमें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में। और ये 8 लाइफस्टाइल चेंजेस है जो लॉन्ग टर्म आप वेलनेस के वेलनेस मतलब ये रह सकते हो, फिट रह सकते हो। तो आप इसमें से आप देख सकते हो, राइजिंग विद द सन, मॉर्निंग वर्कआउट, वाटर इनटेक, होम कुक मील, पाम साइज मील। पाम साइज मील यानी कि आपके जितने हाथ है उतना ही आपको मील खाना चाहिए। वैसा आज तो कोई खाता ही नहीं है, मैं भी नहीं खाता हूँ सीरियसली। जितना आपका पाम साइज है उतना ही आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपका पेट उतना ही रहता है। ये पाम साइज मील, ईट इन साइलेंस, जो हम खाते समय आपको यहाँ हुआ नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, जो भी खाना है हाथ से खाना है, क्योंकि हम स्पून से खाते हैं तो उसका आपको फील नहीं आता है। हाथ से खाने से आपको उस खाने का फील आता है और आपका डाइजेशन अच्छा होता है। बैठ के खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि आप मुंह करते हो, बैक होते हो, मुंह करते हो, बैक होते हो। ठीक है, डिनर 6 बजे तो आजकल कोई करता नहीं है, 6 बजे तो हम घर पे जाते हैं। 6 बजे डिनर तो आपको मिलता ही नहीं है किसी को, हमको भी नहीं मिलता है। स्लीप एट 10 PM, वो भी अप्रॉक्स ना के बराबर है। तो ये जो इसमें से हम खुद को मार्क्स दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आप 1 to 10 आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं। और इस पे आप डिपेंड ये कर सकते हैं कि हम कितने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इसमें से आपको मार्क्स देने के बाद आपको पता चलेगा कि सुबह जल्दी कौन उठता है। इसलिए मैं खुद को 10 दे सकता हूँ। मॉर्निंग वर्कआउट के लिए मैं खुद को 10 दे रहा हूँ। वो वाटर इनटेक के लिए मैं 10 दे रहा हूँ। होम कुक मील के लिए मैं 9 दे रहा हूँ। पाम साइज मील के लिए मैं 6 दे रहा हूँ। ईट इन साइलेंस के लिए मैं 7 दे रहा हूँ। डिनर एट 6 के लिए मैं 5 दे रहा हूँ। स्लीप एट 10 के लिए मैं 7 दे रहा हूँ। ये ऐसे आपके मार्क्स आप
आप खुद को दे सकते हो, और इसके रिगार्डिंग आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि आप कितना हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ जा रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि मैंने आपको आज बताया और आपने कल से चालू कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कल से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, ओके। जिसमें से लेकिन अवॉइड एक्सेसिव शुगर एंड फ्लैट, स्लीप 7 to 8, ये तो आप कर ही सकते हैं। 7 से 8 घंटे के लिए सो लेके किसी को इम्पॉसिबल नहीं है। 3 बैलेंस मील लीजिए, 15 मिनट का तो वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, और कल के लिए वेट मत कीजिए, आज ही घर जाने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो इसमें आपका कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका कुछ डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। Yeah, if any of the students or the faculty members, if you have doubts, you can unmute your mics or you can type in the chat box. सर वर्कआउट इवनिंग में करेंगे तो चलेगा ना, मतलब मॉर्निंग में क्या एडवांटेजेस? वर्कआउट इवनिंग में करेंगे तो चलेगा ना, मतलब मॉर्निंग वाले के क्या एडवांटेजेस होते हैं? ओके, इवनिंग में वर्कआउट ट्राई करो कि बिफोर सनसेट करने का, ओके, क्योंकि बिफोर सनसेट आपका बॉडी रेस्ट मोड में चला जाता है। क्योंकि इवनिंग में पहले का आप देखोगे तो पहले 6 से 7 के बीच में लोग खाना खाते थे, और 8 से 9 के बीच, 8 से बाद तो सोते थे। तो आप ट्राई करो कि मॉर्निंग में वर्कआउट करो, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है। आपका दिन भर कैसा रहता है, आप दिन भर जो काम करते हो उसका स्ट्रेस आपके ऊपर रहता है, ओके। और दिन भर आप जो काम करते हो उस पर आप उसके डिपेंड आपका मूड भी रहता है। आज घर जाने के बाद आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप एक्सरसाइज करोगे, नहीं रहेगा तो नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो उतना फ्रेश आपका माइंड नहीं रहेगा। तो सुबह कैसा रहता है, हमने दिन की शुरुआत ही नहीं की रहती है, तो आज क्या होने वाला है वो भी पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे आप उठते हो जल्दी, आपका दिन एक्सरसाइज से शुरू होता है, एक्सरसाइज के बाद आने के बाद आपका दिन शुरू होता है। तो दिन भर भी आप कितना भी भागदौड़ करोगे तो आपको वो स्ट्रेस नहीं होगा। तो माय सजेशन इज टू मॉर्निंग में आपका एक्सरसाइज अच्छा रहेगा, क्योंकि और शाम में भी करते भी हो तो सनसेट के पहले करो, सनसेट के बाद मत करो, क्योंकि वो आपका बॉडी आप नेचर के अगेंस्ट कर रहे हो। ओके सर, सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 19 से 24 का एज ग्रुप में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज गुड फॉर देयर हेल्थ? 19 से 24, राइट? यस सर। कैसा रहता है, जैसे बच्चे जब भी पैदा होते हैं, ठीक है, वो 22 घंटा मतलब 22 घंटा सोते हैं, 2 घंटा, 23 घंटा पकड़ो, 22 से 23 घंटा सोते हैं। जैसा जैसा उनका उम्र बढ़ता है, ठीक है, उनका नींद कम हो जाता है, और जैसे कि 18 घंटा सोते हैं, फिर 16 घंटा, ऐसा करते करते हम 12 घंटे तक आ जाते हैं। और 90 से 24 आप, ऐसा नहीं कि आपको मतलब 12 या 13 घंटा सोना चाहिए, आपको 8 to 9 आवर्स का स्लीप इनफ हो जाए, क्योंकि आप मोर देन 18 साल के बाद तो आप मैच्योर हो जाते हो, तो आपको 12 घंटा सोने की ज़रूरत नहीं है, 8 से 9 घंटा भी ठीक है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है हमारे, सो ही इज आस्किंग कि वर्कआउट जब इवनिंग में करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगता है, सो इज देयर एनी रीज़न बिहाइंड इट? मॉर्निंग से ज़्यादा इवनिंग में ज़्यादा एनर्जी आता है। वही मैं बताया कि आप दिन भर थकने के बाद आप एक्सरसाइज करते हो तो आप नेचर के अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब दिन भर भी आपका एनर्जी डाउन होता है और उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो। वही आप अगर सुबह करते हो तो आपका एनर्जी फ्रेश रहता है। अगर मैं यहाँ पे घर पे जाने के बाद, मतलब यहाँ पे मैं चल के जाऊँगा, फिर गाड़ी से जाऊँगा, फिर घर पे कुछ काम रहेगा वो करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा, तो मेरा एनर्जी रहता ही नहीं। सुबह एक्सरसाइज करने का मतलब ही वही है कि आप रिलैक्स मोड में रहते हो, उठने के बाद आपका एनर्जी फुल रहता है, उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हो, और वर्कआउट करने के बाद आपका एनर्जी बढ़ता है ना कि कमी होता है। वर्कआउट करने के बाद आप फ्रेश होते हो और आप दिन भर अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। So I think this सर is प्री more in the वर्कआउट में normal scenario, but बच्चों का कहना है कि एनर्जी ज़्यादा शाम में लग रही है, इवनिंग में ज़्यादा एनर्जी आ रही है उनको वर्कआउट के लिए। ये वही बोल रहा हूँ ना कि अगर सनसेट के बाद आप करते हो तो आपका बॉडी जो है वो रेस्टिंग मोड में रहता है, ओके। आपका बॉडी जो है वो रेस्टिंग मोड में रहता है, तो उसके अगेंस्ट आप कर रहे हो। इवनिंग में आप बॉडी के अगेंस्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आपको एनर्जी ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट कर रहे हो।
मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन है तो उसमें बताया कि आफ्टर सनसेट आपका बॉडी रेस्टिंग मोड में चला जाता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे. So what he's trying to say is he's feeling more energetic in the evening than the morning for the workout. So I think that's mostly because स्टूडेंट्स उठते ही दोपहर में 12-1 बजे हैं, उसके बाद में सब दिन शुरू होता है उनका, तो ऑब्वियसली तब ज्यादा एनर्जी आता होगा शाम में. मैम प्री वर्कआउट अगर लेंगे, प्री वर्कआउट में कार्ब्स इंक्लूड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, तो मैम एनर्जी कैसा रहता है, एनर्जेटिक आपको रहेगा, लेकिन आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है. ओके, मतलब आपको बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, आपको एनर्जेटिक लग रहा है लेकिन आप बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो. ओके, क्योंकि आप मॉर्निंग में आप ट्राई करो, आपको उससे अच्छा लगेगा. आपको अच्छा लग रहा है इवनिंग. यस, आई थिंक रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो ज्यादा मॉर्निंग में करने से ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे. यस यस, डेफिनेटली. या, एनी मोर क्वेश्चंस? Sir, I also have one question, sir. Yes. Am I audible clearly? Yes. Sir, many senior citizens, even teenagers also nowadays suffering from asthma, breathing disease, or we can say allergy, where they are suffering with some sort of breathing disease. So can they go for yoga and pranayam? डेफिनेटली योगा विल हेल्प यू टू, मतलब आपका वो दमा भी निकल जाएगा. अगर आप प्रॉपर करते हो तो आपका दमा भी निकल सकता है. योगा में बहुत सारी क्रिया है, जैसे धोती बोलते हैं, उसको पानी पी के आपको वोमिटिंग करना होता है, उसमें से आपका दमा यानी व्हाट, आपका कफ छाती में ब्लॉक हो जाता है, राइट. आप अगर आप धोती करते हो, धोती यानी कि आपको पानी पीना है, गर्म को मतलब नॉर्मल पानी पीना है, और उसको आपको वोमिटिंग करना है, तो उसमें से आपके सारे कफ निकल जाते हैं और आपको रिलीफ मिलता है. आपके कफ सब निकल जाने के बाद आपको रिलीफ मिलता है चेस्ट में, और आपका दमा भी ठीक होता है, ठीक भी हो जाता है, और कभी कभी रिकवर भी हो जाता है. इट डिपेंड के आप मतलब वो कैसा कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो. और इसमें ये बहुत कपाल भारती, डीप ब्रीदिंग और धोती, ये 3 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी टू रिकवर फ्रॉम अस्थमा. Okay, sir. But if they are going for pranayam, will they suffer during that process? नो, वो कैसा रहता है, प्राणायाम वगैरह सिर्फ यही मैंने वही बताया कि कोई जानकार व्यक्ति रहेगा उससे आप सीखो, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है. जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसा ही कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं देख सकता, राइट. अगर आप हमारे सामने कर रहे हो तो मैं आपको कुछ गलतियाँ है वो मैं सुधार सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऑनलाइन देखोगे और घर पे जाके कुछ दूसरा ही करोगे तो उसका आपको साइड इफेक्ट होने वाला है. इसलिए जो भी करोगे वो मतलब आपके जो भी गाइड रहेगा उसके सामने करो, या प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके करो. कोई भी आधा मतलब नॉलेज लेके मत करो. अच्छा. I think that was all the questions that we had for today. I would request Professor Vandana Chavan ma'am to please give the vote of thanks after this wonderful session by Vishal sir. Ma'am, please. Hello, am I audible? Yes, ma'am. So before starting the vote of thank, I would like to say one thing. संस्कृत का एक श्लोक बहुत माना जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर माध्यम है, एकमेव माध्यम है जो आपको किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त है. If you want to achieve anything in your life, you have to first of all to be fit to achieve those things. So you have to take care of your fitness, of your physical health and mental health also. During this COVID situation, we all are facing different situations, difficulties regarding physical and mental health. And we need such a sessions regularly so that we will get motivated by such a motivational speaker, Mr. Vishal Patil sir. And I would like to say thank you very much, sir, that for this motivational speech and demonstration
Actually, whenever we observe yoga, we simply think that some asanas we have to do and that's it. But actually, it's not the reality. Reality is that you have to control your breath, you have to control the body movement, you have to control your mind while doing these yogasanas. And thank you very much, sir, for giving this detailed knowledge. Yes, I accept that our senior citizens can sit properly with the asanas which you have said earlier. But current generation can't sit for even a more than 10 minutes. That we have to accept because we have the habit of sitting with a dining table on the chair and without these kind of asanas. Now we are not that much flexible that just like our senior citizens are because they are fit even in this age even after 60, 70, they are living a healthy life. But today's teenagers are suffering with mental and physical health issues. So these kind of sessions are regularly required. And thank you very much, sir. Not sorry. Hello. Yes, yes, ma'am. You are right. At the end, I would like to say thank you to HOD sir, to Principal sir, Pooja Shinde madam for your kind support, and all other staff member and faculty and students for your kind support and participation of this event. Thank you very much, everyone, and thank you, Vishal sir. In future, we would like to arrange such a session again, and I would like to ask you, will you help us again in future for similar kind of session? Yes, definitely, ma'am. I will improve myself because this time permits. Because I have only 1 hour, that's why I wrap it soon. But I will improve myself and I will add more slide in it, and I will try to extend this session more asanas and more kriyas. Will definitely be give it to demo to you. Okay. Thank you. Thanks for giving the opportunity to me. Thank you, everyone. Thank you, Pooja ma'am. Thank you, Vandana ma'am. Thank you, everyone. Thank you, all students who Thank you, listen sir. to me. Okay. If you have any queries, you can ask me. There is no like that after the session. You can not to contact me. Thank you, You sir. can ask me. You can ask me any query if you have in future also. Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone.